Good morning, dear students. Dear students, in this chapter we have discussed about the various organ systems that are present in earthworm. We had started with the first organ system, that was the alimentary canal of earthworm, in which we discussed that the alimentary canal runs from the first to the last segment. We also saw that in the alimentary canal, beginning from mouth, buccal cavity, pharynx and esophagus, stomach, intestines, earthworms are having all these structures. Then we have discussed about the blood vascular system of earthworm, in which we studied that earthworm also has presence of different types of blood vessels and earthworm has a closed circulatory system. The third system that we discussed was about the nervous system of the earthworm, and in the nervous system we said that the earthworms will be having a nerve ring like structure that will function as their brain, and then they have a nerve cord with the segmental ganglia. Sensory organs like eyes are absent, but there are receptors which will be recognizing different intensities of light or any of the changes happening on the ground. They also had presence of chemical receptors for recognizing any change in the chemicals of the soil. So that is how three systems we have discussed. One more system we talked about was the excretory system, in which excretory organs of the earthworm was nephridia. And these nephridia were of different types like pharyngeal nephridia, septal nephridia, right? And there were integumentary nephridia. Now we are moving on to the last system we need to understand for earthworms, and that is the reproductive system of earthworm. वैसे तो हमने सारी सिस्टम स्टडी की है, but now we are talking about one last system, that is the reproductive system of the earthworm. अब जब हम earthworm के reproductive system की बात करते हैं तो सबसे जरूरी ये चीज है कि earthworms जो होते हैं उनका sexual मतलब either they are males or they are females. We have studied it further that earthworms are hermaphrodites. Earthworms are hermaphrodites means both the testes as well as the ovaries are located in the same individual organism itself. So we will mention that earthworm are hermaphrodites. अब hermaphrodites जब भी वर्ड आता है तो ये समझना जरूरी है that testes and ovaries are present in same individual. मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में both male reproductive system as well as female reproductive system will be present. तो दोनों ही systems जो हैं वो एक ही बॉडी में यहाँ पे present होती है in the case of the earthworm. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं about the male reproductive system, so let us first consider that what are the male reproductive organs in the earthworm. है तो ये hermaphrodite, मेल और फीमेल दोनों ही सिस्टम्स हैं, पर पहले हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पहले हम बात करते हैं. द अर्थवर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेल रिप्रोडक्टिव और द मेजर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दैट इज द टेस्टिस. There are two pairs of testes that will be present. They are present in the segment number 10 and 11. So there is two pairs of testes. Which segment? I said segment number 10 and 11. मतलब one pair is located in segment number 10 and the another pair is located in segment number 11. तो 10 और 11 में testes present होते हैं, but these testes are present. So the small structure is testis, but the testes are present in a sac-like structure, and so we say that these testes are present. These testes are present in the
टेस्टिस सैक। टेस्टिस प्रेजेंट है पर किस में प्रेजेंट है? टेस्टिस सैक में प्रेजेंट है। तो हम मेंशन कर देते हैं इस तरफ दैट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द टेस्टिस and testis is present in this white colored boundary like structure. This is known as testis sac. ठीक है, तो एक sac जैसा structure है जिसमें testis present होते हैं and how many of them are there? Here only one is observed, but actually ये जो 11th segment है वहां पे भी testis present है. So there will be testis located in segment number 10 and segment number 11. Now along with testis, the structure that you can see just below the testis is known as a spermiducal funnel. It is known as spermiducal funnel. ये जो स्पर्मिड्यूकल फनल होता है वो सिर्फ एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग जहां पे स्पर्म्स कलेक्ट होंगे। मतलब टेस्टिस जो है उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है, पर ये स्पर्म फॉर्मेशन कलेक्ट किस में होता है? तो इट गेट्स कलेक्टेड इन द स्पर्मिड्यूकल funnel. Now there is another white colored round structures which you can observe that are again a reproductive glands located in earthworm, and these glands are known as seminal vesicles. So earthworms have presence of seminal वेसिकल। जैसे ह्यूमंस में भी होते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी टेस्टिस है। टेस्टिस के नीचे जो ओपनिंग्स दिख रही हैं, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पर्मिड्यूकल फनल। And one more structure they have over here is known as the seminal vesicle. और seminal vesicle भी two pairs हैं। यहाँ पे ऊपर दो जो white दिख रहे हैं that is first pair, and again as you can see over here this is the second pair of the seminal vesicles. Seminal vesicles will be providing a nutritive fluid by which the sperms can move. क्योंकि यहाँ पे जो sperms होते हैं they are also having a means they will be moving further, moving into the track like structure जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो seminal vesicles हैं वो अपना nutritive fluid ऐड करते हैं which gives motility to the sperms, nutrients to the sperms, right? So there is presence of seminal vesicle. Now these sperms which are being collected over here, they will be traveling, or there will be the next structure in which the sperms will travel, which is a very long tubular structure, and this is known as vas deferens. This is known as vas deferens. Okay, so here there is presence of two pairs of seminal vesicles, the vas deferens is a long tubular structure, that extends from segment 10 to 18। मतलब 10th सेगमेंट से स्टार्ट होगा ये ट्यूबुलर पार्ट वास डिफरेंस, एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल विच सेगमेंट? टिल द 18th segment, and there it is going to meet the next gland like structure which is known as the prostate gland. There it is going to meet the prostate gland. Okay, so it meets the prostate gland in segment 18. तो 18th सेगमेंट में क्या आ जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ द थिंग दैट इज, मतलब ये 18 से स्टार्ट होता है बट एक्चुअली ये पूरा 17 से 19 पूरे में एक्सटेंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट देयर इज अ स्मॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। दिस डक्ट इज नोन एज कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। तो प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट का मतलब क्या हुआ
कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी यहीं से आता है और स्पर्मेटिक डक्ट मतलब जिसमें वो स्पर्म्स आए थे वो भी यहीं पे ओपन हो रहा है. मतलब बोथ स्पर्म्स एंड द फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड विल बी ओपनिंग एट द 18th segment, where it will be opening 18th segment. So a common prostatic and spermatic duct opens at ventrolateral 18th segment, and this will be known as the male genital pore. This will be known as the male genital pore. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले आ जाते हैं टेस्टिस जो लोकेटेड है सेगमेंट नंबर 10 में और 11 में. कितने हैं? 2 पैर हैं. ठीक है. टेस्टिस जो है वो एक व्हाइट कलर के सैक लाइक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है उसमें प्रेजेंट है. तो वो जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे टेस्टिस सैक. टेस्टिस के नीचे आ जाते हैं ये दोनों ओपनिंग्स जिन्हें कहा जाता है स्पर्मीड्यूकल फनल्स. और फनल्स के नीचे आप देख सकते हो देयर इज 2 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल्स आर accessory reproductive glands of earthworm. Now these that is the spermatical funnels are going to continue into tubular structure. This tubular structure is known as the vas deferens. It is known as vas deferens. ये कहाँ तक कंटिन्यू होता है? 18th segment तक. 18th segment पे आने पे it is going to combine with a large size duct which is observed जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और यहाँ से जो स्पर्म्स आए हैं ये दोनों ही दे आर गोइंग टू ओपन एट द 18th segment थ्रू अ कॉमन प्रोस्टेटिक एंड अ स्पर्मेटिक डक्ट. वो डक्ट को कॉमन नाम दे दिया है प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट. और ये डक्ट से ओपन होंगे 2 ओपनिंग्स होंगे राइट. और ये दोनों ओपनिंग्स को कैसा कहा जाएगा? ऑन द वेंट्रोलेटरल. मतलब वेंट्रल साइड पे तो है ही राइट. ये अर्थवर्म का डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है. वेंट्रल पर लेटरल साइड्स पे ओपन होंगे एंड दैट विल बी द मेल जेनाइटल पोर. There will be presence of 2 more, that is again an accessory gland, and these are located in segment number 17 and 19. These are known as accessory glands. I am mentioning the segment 17 and 19. मतलब one pair is located in segment number 17 and the another pair is located in segment number 19. ये accessory जो glands हैं they will be helping in the production of the sperms. मतलब sperms तो testis में से बनेंगे पर उसके साथ जो additional nutritive material होता है वो सब कौन provide करेगा? These additional glands. One more thing included in the male reproductive system is the presence of a structure called spermatheca. अब स्पर्मेथिका जो होता है ये स्पर्मेथिका एक ऐसा स्ट्रक्चर है that will be for storage of the sperms. Actually जब earthworms reproduce करते हैं when they mate with each other तो वो क्या करते हैं कि दूसरे अर्थवर्म में से स्पर्म्स जो होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं एंड देन दे स्टोर इट इन द स्पर्मेथिका. तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेथिका है वो स्पर्म स्टोरेज के लिए बना गया है. ठीक है. सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेथिका एंड इट विल बी लोकेटेड फ्रॉम द सेगमेंट 6 to 9. क्यों 6 to 9? बिकॉज वन पेयर इज लोकेटेड बिटवीन 5-6, second pair is located between 6-7, third pair is located between 7-8 and the fourth is located between 8 and 9. क्योंकि स्पर्मेथिका इंटरसेगमेंटल साइट्स पे प्रेजेंट है राइट. कोई सेगमेंट में नहीं है, इंटरसेगमेंटल होता है. ठीक है. तो दैट विल बी 4 pairs of spermatheca for storage of the sperms. अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है वेरी फ्यू थिंग्स आर इंक्लूडेड. फर्स्ट there will be a pair of ovaries और ये ovaries located है as you can see over here. the ovaries are present at the junction of 12th and 13th segment. ठीक है. so a pair of ovaries is present and this lower structure which you can observe, this openings
are known as oviducal funnel. They are known as oviducal funnel, and they open into segment number 14, which is known as the female genital pore. मतलब ओवरीज हैं, ओपनिंग्स को कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्पर्म जहाँ पे एंटर होंगे वो ओपनिंग को स्पर्मेड्यूकल फनल कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं ओविड्यूकल फनल. और फिर ये आ जाता है छोटा ट्यूबुलर पार्ट जिसे कहते हैं ओविडक्ट, और ये जो है ओपनिंग यहाँ पे होगी वो होगी सेगमेंट नंबर 14 में, और इसे कहेंगे फीमेल जेनाइटल पोर. तो फीमेल जेनाइटल पोर एक ही है, और वो कौन से सेगमेंट में है? 14, मिड वेंट्रल. ठीक है, मिड वेंट्रल. जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स, मेल जेनाइटल पोर जो हैं वो 2 होंगे, एंड दे आर लोकेटेड इन विच सेगमेंट? 18th सेगमेंट. ओके, तो अब हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट हाउ रिप्रोडक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस. So now we talk about the female reproductive organs. So female reproductive organs will be including the ovaries which are present in the intersegmental, or you can say septum, interseptal segment number 12 and 13. 12th और 13th सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा है, पार्टीशन है, सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन 12 एंड 13. इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन सेगमेंट नंबर 12 एंड 13. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले आ जाती है ओवरीज. ओवरीज जो है वो 12th और 13th सेगमेंट के बीच में जो सेप्टम है यहाँ पे प्रेजेंट है. सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेप्टम रीजन ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट. These ovaries will be, below the ovaries there is presence of the oviducal funnels. Oviducal funnels जो होते हैं वो ovaries में से जो egg release होते हैं उन्हें collect करते हैं. And these oviducal funnels, ऐसा था structure, right? Oviducal funnel ऐसा होगा. There will be a small tubular structure like this. तो ये है oviducal funnel. इसे हम कहेंगे oviduct. और ये जो ओपनिंग होगा दैट इज द फीमेल जेनाइटल पोर. तो फीमेल जेनाइटल पोर कौन से सेगमेंट में है? सेगमेंट नंबर 14 में. सो इन द सेगमेंट नंबर 14 एंड दैट ऑल्सो मिड वेंट्रल. ठीक है, नॉट वेंट्रोलेटरल. मेल जेनाइटल पोर कहाँ था? वेंट्रोलेटरल साइड्स. ओके, मतलब वेंट्रल पर लेटरल साइड्स पे था, जबकि ये क्या है? अ मिड वेंट्रल. ओनली वन फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट एंड दैट आल्सो इन सेगमेंट नंबर 14. सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये हमने ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली. नाउ हाउ देयर इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. Now for the process of reproduction there is need of 2 earthworms. अब हमें ये बात लगेगी कि अर्थवर्म्स में तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट ही है, तो 2 यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मतलब 2 अर्थवर्म्स की जरूरत क्यों है? तो 2 अर्थवर्म्स की इसीलिए जरूरत है बिकॉज 2 अर्थवर्म्स विल बी juxtaposing each other and there will be a process of cross fertilization, not self fertilize. सेल्फ फर्टिलाइज कब कहते हैं? जब खुद ही के स्पर्म्स खुद ही के एग को फर्टिलाइज करे तो उसे सेल्फ फर्टिलाइज कहते हैं. पर यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. दे फॉलो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सो दैट इंडिकेट्स दैट the process of mating requires 2 earthworms. The process of reproduction requires 2 earthworms. So the 2 earthworms, they are going to
juxtaposing each other. Juxtaposing मतलब जहाँ पे एक का हेड आता है वहां पे दूसरे अर्थवर्म का टेल आएगा. मतलब अगर दो अर्थवर्म्स ऐसे होंगे and this is the head of first earthworm, here will be the tail part or the posterior part of the another earthworm. ऐसे opposite direction में जब lie करते हैं तो उसे कहा जाता है juxtaposing. तो यहाँ पे juxtaposing होंगे दो earthworms, they will find each other and they will be juxtaposing each other. Now one earthworm that is out of two that is going to exchange the sperms. What they are going to do? Exchange the sperms in the form of sperm packets which are known as spermatophores. So they will exchange the sperms in the form of पैकेट्स. ठीक है, पैकेट या बंडल के फॉर्म में स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे एंड दैट इज नोन एज स्पर्मेटोफोर. अ बंडल ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर. व्हाट इज स्पर्मेटोफोर? अ बंडल ऑफ स्पर्म. मतलब पहले क्या हुआ, दोनों अर्थवर्म ऐसे एक दूसरे से जक्स्टापोजिंग है, ऐसी पोजीशन को जक्स्टापोजिंग कहेंगे. ठीक है, अब मेल जेनाइटल पोर जो 18th सेगमेंट है उसमें से क्या होगा, अ बंडल ऑफ स्पर्म विल बी रिलीज. तो मेल जेनाइटल पोर में से जो स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं दैट विल बी टेकन बाय स्पर्मेथिका ऑफ द अनदर अर्थवर्म. आर यू गेटिंग इट? मतलब एक जो है मेल जेनाइटल पोर में से रिलीज हुए स्पर्म्स मतलब स्पर्मेटोफोर, राइट. और ये स्पर्मेटोफोर कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टेड इन स्पर्मेथिका ऑफ अनदर वर्म. मतलब एक वर्म जो है वो अपने मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म के बंडल डाल रहा है बाहर, और ये जो स्पर्म के बंडल्स डाले मतलब जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स, ये कौन रिसीव करेगा? वो जो दूसरा अर्थवर्म है दैट इज गोइंग टू रिसीव इट एंड इट इज गोइंग टू स्टोर इट इन व्हाट? स्पर्मेथिका. किसमें जाके स्टोर कर देगा? स्पर्मेथिका में. अब इतना करने के बाद बोथ द अर्थवर्म्स गेट सेपरेटेड. स्पर्म्स दे दिए, अब ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि अर्थवर्म्स में जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले एक्टिव हो जाता है, पहले मैच्योर हो जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़े टाइम के बाद मैच्योर होता है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स तो बन गए, राइट. अब क्या होगा, वही अर्थवर्म में जिसने अभी ये स्पर्म्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम अनदर अर्थवर्म, अब यहाँ पे देयर विल बी रिलीज ऑफ a small structure which is called cocoon. So the earthworm will be releasing, जिसने ये sperms लिए हैं, that earthworm releases small cocoons with eggs and nutritive fluid. मतलब अर्थवर्म जो है वो ऐसे छोटे छोटे ककून्स रिलीज करेंगे और ये ककून्स के अंदर होंगे एग्स, राइट. और एग्स के साथ साथ क्या होगा? न्यूट्रिटिव फ्लूइड होगा. अब जैसे अर्थवर्म थोड़ा क्रॉल होता है वैसे ये ककून्स जो है वो आगे स्पर्मेथिका की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि मान लो कि हियर इज द ककून दैट इज रिलीज एंड दिस इज द अर्थवर्म. तो ककून कौन से सेगमेंट में से रिलीज होगा? 14th, राइट. ककून जो होता है वो क्लाइटेलम मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल पोर है वहां से रिलीज होगा. तो ककून के अंदर ऑलरेडी एग और न्यूट्रिटिव फ्लूइड है. अब ये अर्थवर्म जब थोड़ा मूव करेगा सो ककून्स विल स्लाइडली स्लिप फॉरवर्ड एंड दे विल स्लिप फॉरवर्ड एंड दे विल बी नियरेस्ट टू व्हाट? नियरेस्ट टू द स्पर्मेथिका. तो अर्थवर्म ने यहाँ पे से ककून रिलीज किए, फिर अर्थवर्म थोड़ा मूव होता है जिसकी वजह से द ककून्स कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्मेथिका. सो द एग्स, द स्पर्म्स आर also released over here in the cocoons. मतलब जो cocoons हैं अब उनमें क्या है? एग तो है ही, पर साथ साथ में there is also the presence of the sperms. मतलब एक cocoon के अंदर एग है, स्पर्म है और न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, राइट. पहले क्या हुआ? दो अर्थवर्म्स जो थे they were juxtaposing each other
एक ने स्पर्म्स रिलीज किए, दूसरे ने स्पर्म्स को एक्सेप्ट किया, अब दोनों अर्थवर्म्स अलग हो गए। अब जिसने स्पर्म्स को एक्सेप्ट किया है वो अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या करेगा, वो ककून रिलीज करेगा। ककून में एग होंगे और न्यूट्रिटिव फ्लूइड होगा। जैसे अर्थवर्म मूव करता है ककून आगे स्लिप होता है, जिसकी मदद से द एग्स स्पर्म्स विल आल्सो बी रिलीज्ड इन द ककून। स्पर्म्स रिलीज हो गए, अब दोनों, अब क्या होगा कि यहाँ पे देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू अकर इन द ककून्स। अब फर्टिलाइजेशन हो गया ककून्स के अंदर, सो दिस इज, ये ककून्स को वो सॉइल के अंदर थोड़े दिनों तक स्लिप कर देगा, मतलब उसको रख देगा सॉइल के अंदर। थोड़े दिन बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ककून्स के अंदर दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू 2 to 20 बेबी वॉर्म्स। ककून के अंदर रहेंगे अर्थवर्म के एम्ब्रियो ग्रो होते जाएंगे और ग्रो होते होते आफ्टर फ्यू डेज यू कैन ऑब्जर्व 2 to 20 बेबी वॉर्म्स इनसाइड द cocoon. They will break the cocoon and they will come out. So that is how the process is going to occur. Spermatheca में sperm store हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ककून्स रिलीज हुए। ककून्स जो है दे विल बी रिलीज्ड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द क्लाइटेलम, क्योंकि 14 सेगमेंट में क्लाइटेलम आता है, तो क्लाइटेलम है इज अ ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर, राइट, और उसमें से रिलीज होता है ककून। ककून रिलीज हो जाने पर स्पर्म्स जो है वो भी ककून में एंटर हो जाते हैं। ककून के दोनों एंड्स जो होते हैं वो सील हो जाते हैं। ककून के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके एम्ब्रियोज जो है वो उसी में ग्रो होते हैं एंड आफ्टर सर्टेन टाइम 2 to 20 बेबी वॉर्म्स विल बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है, क्रॉस, क्योंकि 2 अर्थवर्म्स की जरूरत होती है, इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज गोइंग टू अकर, ठीक है। और यहाँ पे कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है, देयर आर नो लार्वल स्टेजेस, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत क्यों है यहाँ पे, बिकॉज अर्थवर्म्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेट एक्टिवेट होती है। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म्स लाके दूसरे के स्टोर कर लेते हैं, सो दैट व्हेनेवर देयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्टिवेटेड दे कैन रिप्रोड्यूस। सो देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर इट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, दैट अर्थवर्म्स आर known as farmers friends। तो अर्थवर्म्स जो होते हैं वो सॉइल को पोरस बनाते हैं। सॉइल में को पोरस मतलब सॉइल के अंदर पोरोसिटी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एग्रीकल्चर में हेल्पफुल रहता है, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल करता है एंड पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। क्या करते हैं अर्थवर्म, सॉइल को पोरस बना देते हैं, और पोरस सॉइल जो है उसमें रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और रूट्स को ज्यादा डीप पेनिट्रेट होने में भी हेल्प करता है। ये सॉइल को रोटेट करता है, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। सॉइल फर्टिलिटी इज इंक्रीज बिकॉज दे कीप ऑन burrowing into the soil. As a result, they mix the soil up and down, due to which the fertility of the soil also increases, which is beneficial in agriculture. Beneficial in agriculture. And this use of earthworms in agricultural field is known as vermicomposting. Use of earthworms in the agricultural fields for increasing the fertility of the soil is known as vermicomposting. So that was all about the earthworms reproductive system, and next lecture we will start discussing about the organism cockroach.